हम पढ़ेंगे जोशुआ चैप्टर 5, 6 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 5, 6। रिबांति खम्बरहा शरबे खसिराल रबहु खुशियांदुरा। पवित्र आत्मा हमें आप वचन के अंदर परमेश्वर दिखाइए, प्रभु यीशु मसीह दिखाइए, हमें पवित्र आत्मा आप अपने आप को दिखाइए ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हमारा जीवन परमेश्वर पर और ज़्यादा निर्भर हो सके, अशुद्धता और अपवित्रता से हम दूर हो सके और आपके मार्ग हम लेकर चल सके। हम में परमेश्वर का भय बढ़ने लगे और आपका परमेश्वर का जो काम है हमारे अंदर वो पूरा कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Joshua 5 chapter 1 verse से पढ़ेंगे। And it came to pass when all the kings of the Amorites which were on the side of Jordan westward and all the kings of the Canaanites which were by the sea heard that the Lord had dried up the waters of Jordan from before the children of Israel until we were passed over, that their heart melted, neither was there spirit in them any more because of the children of Israel. At that time the Lord said unto Joshua, Make thee sharp knives and circumcise again the children of Israel the second time. And Joshua made him sharp knives and circumcised the children of Israel at the hill of the foreskins. And this is the cause why Joshua did circumcise all the people that came out of Egypt, that were males, even all the men of war died in the wilderness by the way after they came out of Egypt. Now all the people that came out were circumcised, but all the people that were born in the wilderness by the way as they came forth out of Egypt, them they had not circumcised. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness, till all the people that were men of war which came out of Egypt were consumed, because they obeyed not the voice of the Lord, unto whom the Lord sware that he would not shew them the land which the Lord sware unto their fathers, that he would give us a land that floweth with milk and honey. And their children whom he raised up in their stead, them Joshua circumcised, for they were uncircumcised, because they had not circumcised them by the way. And it came to pass, when they had done circumcising all the people, that they abode in their places in the camp till they were whole. And the Lord said unto Joshua, This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day. And the children of Israel encamped in Gilgal, and kept the Passover on the 14th day of the month at even, in the plains of Jericho. And they did eat of the old corn of the land on the morrow after the Passover, unleavened cakes and parched corn in the selfsame day. And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn of the land, neither had the children of Israel manna any more, but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year. And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, And art thou for us or for our adversaries? And he said, Nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, What saith my Lord unto his servant? And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. हम पढ़ेंगे जोशुआ 6 चैप्टर
First verse. Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns, and the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. And Joshua the son of Nun called the priests, and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord. And he said unto the people, Pass on and compass the city, and let him that is armed pass on before the ark of the Lord. And it came to pass, when Joshua had spoken unto the people, that the 7 priests bearing the 7 trumpets of ram's horns passed on before the Lord, and blew with the trumpets, and the ark of the covenant of the Lord followed them. And the armed men went before the priests that blew with the trumpets, and the reward came after the ark, the priests going on and blowing with the trumpets. And Joshua had commanded the people, saying, Ye shall not shout nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth until the day I bid you shout, then shall ye shout. So the ark of the Lord compassed the city, going about it once, and they came into the camp and lodged in the camp. And Joshua rose early in the morning, and the priests took up the ark of the Lord, and 7 priests bearing 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord went on continually, and blew with the trumpets, and the armed men went before them. But the reward came after the ark of the Lord, the priests going on and blowing with the trumpets. And the 2nd day they compassed the city once, and returned into the camp. So they did 6 days. And it came to pass on the 7th day that they rose early about the dawning of the day, and compassed the city after the same manner 7 times. Only on that day they compassed the city 7 times. And it came to pass at the 7th time, when the priests blew with the trumpets, Joshua said unto the people, Shout, for the Lord hath given you the city. And the city shall be accursed, even it and all that are therein. To the Lord only Rahab the harlot shall live, she and all that are with her in the house, because she hid the messengers that we sent. And ye in any wise keep yourselves from the accursed things, lest ye make yourselves accursed when ye take off the accursed thing, and make the camp of Israel a curse and trouble it. But all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. So the people shouted when the priests blew with the trumpets. And it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. And they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, and ox and sheep and ass, with the edge of the sword. But Joshua had said unto the 2 men that had
that had spied out the country, go into the harlot's house, and bring out thence the woman and all that she hath, as ye swear unto her. And the young men that were spies went in and brought out Rahab and her father and her mother and her brethren and all that she had, and they brought out all her kindred and left them without the camp of Israel. And they burnt the city with fire, and all that was therein, only the silver and the gold and the vessels of brass and of iron they put into the treasury of the house of the Lord. And Joshua saved Rahab the harlot alive, and her father's household, and all that she had, and she dwelleth in Israel even unto this day, because she hid the messengers which Joshua sent to spy out Jericho. And Joshua adjured them at that time, saying, Cursed be the man before the Lord that riseth up and buildeth this city Jericho. He shall lay the foundation thereof in his firstborn, and in his youngest son shall he set up the gates of it. So the Lord was with Joshua, and his fame was noised throughout all the country. इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यहोशुआ की पुस्तक यहोशू की पुस्तक 5-6 अध्याय। 5 अध्याय पहले वचन से। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब ये इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवा कर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवा कर खलड़िया नाम टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सबका तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे। तब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई तो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। सो इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे, और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन में भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन बिहान को मन्ना बंद हो गया, और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाई। तब यहोशू यरीहो के पास था। तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है व हमारी बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ।
तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। अध्याय 6 पहले वचन से। और यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। फिर जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियार बंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया। तब वे छावनी में आए और रात वही काटी। बिहान के यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। और उन 7 याजकों ने जुबली के 7 नरसिंगे के लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और उनके आगे हथियार बंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले। और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल यहोवा वेश्या और जितने उसके घर में होवे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इस्राएली छावनी जो को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया।
और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गदहे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपने शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको उसकी और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया, केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको, जिन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। तब वह उसकी नेव डालेगा, तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगावाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Ridana makasi amburo kushere beketina rabahakasi andura. Ridina makashere beketina rabahandra. पावरफुल चैप्टर्स है। परमेश्वर सच में महान है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। आपने आपका डर, आपका भय हमारे अंदर दिया और आपके आज्ञा पालन में चलने का अनुग्रह दिया। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए हमें। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 इयर्स का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रोमन्स 4 चैप्टर 11 वर्स से 25 वर्स, सैम्स 102। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 11 वचन से 25 वचन, भजन संहिता 102 अध्याय। हम अकेले में व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ना है। जब हम व्यक्तिगत समय में पढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर जो कहता है उस सुधार को हम ग्रहण कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं सभियों ने अकेले में पर्सनल टाइम व्यक्तिगत समय में पढ़ना है। आप अपने तरह से पवित्र आत्मा जैसा अगुवाई करे वैसे पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है कि परमेश्वर के आत्मा का हमने सुनना है और सीखना है उससे। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स करो। इन वचनों में हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आओ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।